آپ کی کافی۔ نور آہد کے قریب کافی کا مگ رکھتے ہوئے بولی۔ صبح سے اس کے دماغ میں کنزا کی باتیں چل رہی تھیں۔ کچن میں جانے کے بعد بھی کنزا اور سلمہ بیگم کی آوازیں بلند ہونے کی وجہ سے اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آہد نے ٹی وی کا ریموٹ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جب سے آفس سے واپس آیا تھا نور بالکل خاموش تھی۔ اس کا مرجھایا چہرہ آہد کو عجیب لگا تھا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ آج ضرور کوئی بات ہوئی ہے، تبھی نور بالکل چپ ہے۔ جی، نور نے مختصر جواب دیا اور اپنی سائیڈ والا لیمپ بند کر کے اس کے برابر میں کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ نور کی پشت آہد کی طرف تھی، لیکن وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ آہد نے ٹی وی بند کرتے ہوئے اسے آواز دی، نور، لیکن نور نے اس کے پکارنے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ آہد نے اس کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ نور کے آنسو اس کے رخساروں کے ساتھ تکیے کو بھی بھگو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے نور؟ آہد تو اسے ایسے دیکھ کر گھبرا ہی گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی دل بھر آیا۔ نور نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑی جو اب سرخ ہو چکی تھیں۔ اٹھ کر بیٹھو، آہد سنجیدگی سے بولا۔ نور اس کی بات پر اٹھ بیٹھی۔ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اور دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولنا، آہد اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ اللہ ہماری کب سنے گا آہد، کب ہم سب کو خوشخبری سنائیں گے؟ نور سر جھکاتے ہوئے آہستہ بولی۔ نور ادھر دیکھو میری طرف۔ آہد نے اس کا چہرہ اٹھا کر اوپر کیا تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے نا؟ آہد اتنا تو جانتا تھا کہ نور کے دل میں اتنی جلدی یہ بات نہیں آ سکتی۔ یقیناً اسے کسی نے کچھ کہا ہے، تبھی وہ اس طرح رو رہی ہے۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میں خود چاہتی ہوں کہ اب ہماری اللہ سن لے۔ نور، یہ اللہ کے کام ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا چیز دینی ہے۔ تو مجھے بتاؤ یا نہ بتاؤ، اتنا میں جانتا ہوں کہ آج تمہیں کسی نے ضرور کچھ کہا ہے۔ وہ پھر سوچتے ہوئے بولا، کہیں تمہاری کنزا آپی نے تو کچھ نہیں کہا؟ کہیں تمہیں کنزا آپی نے تو نہیں کہا کچھ؟ کنزا کے نام پر نور چونکی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اگر تم نہیں بھی بتاؤ گی تب بھی میں صبح ماما سے پوچھ لوں گا، لیکن ایسی بات آپ ہی کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں۔ آہد اپنی بہن کی نیچر اچھے سے جانتا تھا کہ وہی نور سے ایسی بات کر سکتی ہے، کیونکہ شادی کے کچھ دن بعد ہی انہوں نے آہد سے خوشخبری سنانے کا کہا تھا، اور وہ بھی جلد۔ آہد، یہ بات چھوڑیے کہ کس نے کہا، آپ بس مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ نور سنجیدگی سے بولی۔ اس کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا کہ ہمیں اولاد کب چاہیے۔ فی الحال تو ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، اس کے بعد سوچیں گے۔ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس نے چوما۔ مجھے کہیں نہیں جانا، نور نے صاف کوئی سے کام لیا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، بتایا ہے تمہیں۔ لیکن آہد، اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی، آہد نے اس کی بات کاٹی۔ رات کافی ہو گئی ہے، اب سونا چاہیے، وہ کہتے ہوئے لیٹ گیا اور نور بس اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ واہ بھابھی، بہت ہی مزے کا کھانا بنایا تھا آپ نے۔ ہمدان اور انم کھانے سے فری ہو کر ٹی وی لاؤنج پہ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ہمدان مناہل کی طرف متوجہ ہوتے بولا تھا۔ ہمدان اور ارم رات کو کھانے پر ان کے گھر آئے تھے۔ مناہل نے ان کے لیے سب کچھ خود بنایا تھا۔ انم مناہل سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تھینکس بھائی، مناہل نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ رجا سے بات کرنے کے بعد مناہل ایک پل کے لیے بھی نہیں سو پائی تھی۔ سارا دن بھی وہ اپنے اندر ارہم سے بات کرنے کے لیے ہمت مجتمع کرتی رہی۔ ارہم اس کے لیے بہت ہی خوبصورت بلیک کلر کا ڈریس لے کر آیا تھا، لیکن مناہل نے اس کا ٹھیک سے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، یا وہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ خود کو اس سے دور رکھنے کی ہی کوشش میں لگی رہی۔ ویسے ارہم بھائی صحیح کہتے ہیں، دیر آئے درست آئے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں بھابھی۔ انم نے اس کو دیکھ کر دل سے تعریف کی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ارہم مسکرا دیا۔ بھابھی آپ بھی تو کسی سے کم نہیں ہیں، تبھی تو ہمدان آپ کے پیچھے پاگل ہوا تھا، ارہم شرارت سے بولا۔ ارہم کی بات پر انم بلش کرنے لگی۔ بھائی، آپ کو مناہل بھابھی کی کون سی عادت سب سے زیادہ پسند ہے؟ ارہم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ انم کی بات کا کیا جواب دے۔ وہ تو مناہل کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے آپ؟ اب کی بار ہمدان نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہمدان کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ میں جب اس پر غصہ کرتا ہوں تو یہ خاموش رہتی ہے، یہی عادت اس کی پسند ہے مجھے۔ ارہم مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، انم چہک کر بولی۔ اور آپ کو مناہل بھابھی؟ مناہل جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی، انم کے سوال پر سنبھل کر بولی۔ ان کی ہر عادت ہی بہت اچھی ہے۔ مناہل نے ارہم سے نظریں چرا کر کہا۔ لگتا ہے محبت ہو گئی ہے ارہم بھائی سے آپ کو۔ انم کی بات پر مناہل نے سر جھکا لیا۔ مناہل بھابھی تو شرماتی بھی ہیں بھائی، انم شرارت سے بولی۔ اچھا بس بھائی، بھابھی کو تنگ مت کرو اور اٹھو، کافی دیر ہو گئی ہے، حاشر بھی انتظار کر رہا ہوگا۔ ہمدان اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ارے نہیں نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا انم بھابھی سے
तो फिर आप हमारे घर ज़रूर आइएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप और अरहम भाई हनीमून पर दुबई आ जाएं, बहुत मज़ा आएगा। अनम मनाहिल से मिलते हुए बोली। हमदान अगली बार हाशिर को ज़रूर लाना। अरहम ने सफाई से बात का रुख मोड़ा। हाँ हाँ ज़रूर लाऊंगा। आज भी वो जल्दी सो गया इसलिए नहीं लाया, वरना ज़रूर लाता। अरहम उन्हें गेट तक छोड़कर टीवी लाउंज में आया, लेकिन मनाहिल उसे वहां नजर नहीं आई। अरहम को आज मनाहिल का हमदान और अनम से इतने अच्छे से बात करना बहुत अच्छा लगा था। अरहम छोटे छोटे कदम उठाता रूम में आया, जहां मनाहिल सामने खड़ी अपने हाथ में पहनी चूड़ियां उतार रही थी। ना चाहते हुए भी अरहम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उस पल उसे वो बहुत प्यारी लग रही थी। लोग सच ही कहते हैं, निकाह में बहुत ताकत है। अपना नापसंदीदा इंसान ही कुछ अरसे में पसंदीदा लगने लगता है। एकदम से उसके दिल में ख्याल आया। अरहम ने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ा जिसमें चूड़ियां पहनी थी उसने, और आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ से चूड़ियां उतारने लगा। अरहम के ऐसे हाथ पकड़ने पर मनाहिल चौंकी थी। थैंक्स, मुझे अच्छा लगा आज तुमने हमदान और भाभी के सामने बहुत अच्छे से। मनाहिल गहरा सांस लेकर उसको देखते ही बोली, आप मुझे तलाक दे दें। अरहम जो उसकी चूड़ियां उतार रहा था, उसके अल्फाज पर उसके हाथ में ही चूड़ी टूट गई। उसके मुंह से सिसकी की आवाज़ निकली। अरहम आप ठीक तो हैं? मनाहिल ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा। खून के कतरे अरहम के ज़ख्म से निकलकर ज़मीन पर गिर रहे थे। हाँ ठीक हूँ। तुम क्या कह रही थी? टेबल से टिश्यू पेपर उठाते वो बोला। उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसने उसके अल्फाज सुने ही ना हो। मुझे आपसे तलाक चाहिए। अब की बार मनाहिल नज़रें चुरा कर बोली। अब वो अरहम का हाथ छोड़ चुकी थी। और अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता तो? अरहम ने अपने ज़ख्म से टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा निकालते हुए उससे पूछा। मैं तब भी यही कहूँगी कि आप मुझे तलाक दे दें। मनाहिल हिम्मत जमा करते हुए बोली। मैं वजह जान सकता हूँ? अरहम ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। मैं आपको वजह नहीं बता सकती। अब की बार मनाहिल की हिम्मत जवाब देने लगी थी। अरहम से दूर जाने के बारे में तो वो अब सोच भी नहीं सकती थी। उसे मोहब्बत हो गई थी अरहम से, और शायद ये बात अभी वो खुद भी नहीं जानती थी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था तो? अरहम की आवाज़ में तल्खी वाज़ेह थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कैसा प्लान? मनाहिल उसकी बात पर हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। यही कि कुछ अरसा मेरा गुस्सा बर्दाश्त करोगी, जब तक तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ़ ना कर दें, और जैसे ही वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा तो तुम मुझसे तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाओगी। अरहम की बात पर तो मनाहिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इस तरह उसके बारे में सोचेगा, वो सोच भी नहीं सकती थी। यकीन ही नहीं आ रहा था उसे। लेकिन अब उसे अरहम से दूर जाना था, और उस वक्त उसको अरहम का हर इल्ज़ाम बर्दाश्त करना था। आप जो भी समझे, कल आप अब्बू से बात करेंगे। मनाहिल अपने अल्फाज पर जोर देते बोली। अरहम फ़ौरन से पहले उठकर उसके पास आया और उसके दोनों बाजुओं से उसे जकड़ा। ऐसा सोचना भी मत कि मैं अब्बू से कोई भी बात करूँगा। तुम्हें तलाक चाहिए ना मुझसे, तो तुम खुद बात करोगी, समझी तुम? ये कहते हुए वो लंबे लंबे कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। मैं क्या करूं? मनाहिल उसके जाते ही ढह सी गई। मुझे तूने किस इम्तहान में डाल दिया मेरे रब। एक तरफ अरहम है जिन्हें मैं नहीं छोड़ना चाहती, मैं तो अब उनसे दूर ही नहीं रह सकती, और दूसरी तरफ रिजा, जिसको मैं यकीन दिला चुकी हूँ कि अरहम सिर्फ और सिर्फ उसका है। बोलते हुए मनाहिल ज़ारो कतार रो दी थी। अरहम की मौजूदगी में वो आंसू जब्त किए बैठी थी, लेकिन उसके कमरे से निकलते ही जब्त का बंधन टूट गया। वो ज़ारो कतार रो दी थी। अब बिन मौसम बरसात की तरह आंसू बरसते चले जा रहे थे। अगले दिन दानियाल साहब, अरहम और मनाहिल नाश्ते की टेबल पर विराजमान थे। मनाहिल पर तलाक की बात पर गुस्सा करने के बाद वो दोबारा कमरे में नहीं आया था, और अब भी मनाहिल को मुकम्मल नज़रअंदाज किए बैठा था। खैर तो है, तुम दोनों खामोश हो। और मनाहिल बेटा, तुम तो कुछ ले भी नहीं रही। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? दानियाल साहब काफ़ी देर से देख रहे थे कि मनाहिल और अरहम दोनों बिल्कुल खामोश हैं। अरहम ठीक से नाश्ता भी नहीं कर रहा था, लेकिन मनाहिल तो बिल्कुल ही कहीं खोई हुई थी। उनकी आवाज़ पर दोनों चौंके। अरहम तो अभी भी मनाहिल की तरफ नहीं देख रहा था। जी अब्बू, मैं ठीक हूँ। फिर थोड़ा रुक कर बोला, अबू मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मनाहिल संजीदगी से बोली। उस वक्त उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? दानियाल साहब ने मोहब्बत से पूछा, और वहीं अरहम मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। अब्बू मुझे अरहम से तलाक चाहिए। बोलते हुए मनाहिल ने अपना सर झुका लिया। मनाहिल की बात पर तो दानियाल साहब शुस्तर रह गए। मनाहिल, क्या कह रही हो बेटा? उन्होंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जैसे मनाहिल कुछ और कह रही है और वो समझ कुछ और रहे हैं।
ابو ٹھیک کہہ رہی ہوں میں اب ارحم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مناہل اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ارحم نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اب کی بار انہوں نے سختی سے پوچھا۔ اپنا نام سن کر ارحم کو کرنٹ لگا اور بنا سوچے سمجھے فوراً بولا، ابو آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے کہوں گا آپ سے بات کرے؟ تم چپ رہو، مجھے میری بیٹی سے بات کرنے دو، دانیال صاحب نے سختی سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ دانیال صاحب نے سخت موری سے نام لیا اس کا۔ ان کے اس طرح بولنے پر ارحم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مناہل کو گھورتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دانیال صاحب دوبارہ مناہل کی طرف متوجہ ہوئے۔ بتاؤ مناہل، تمہیں ارحم نے کہا ہے نا مجھ سے بات کرنے کا؟ وہ جانتے تھے ارحم نے بے شک مناہل کو بیوی کے روپ میں قبول کر لیا ہے، لیکن وہ آج بھی رجا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسی کے کہنے پر وہ مناہل کو طلاق دینا چاہتا ہوگا۔ نہیں ابو، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے تو رات ہی ان سے کہا تھا کہ آپ ابو سے بات کریں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے تم سے طلاق نہیں چاہیے، اور کہا کہ اگر تمہیں طلاق چاہیے تو تم خود بات کرو۔ مناہل ارحم کے دفاع میں بولی۔ وہ اس سارے معاملے میں ارحم پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ تو پھر بیٹا اچانک تم ایسا کیوں چاہتی ہو جب سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ اب کی بار دانیال صاحب اداسی سے بولے۔ میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتی، بس اگر آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں تو پلیز مان جائیں اور ارحم سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دیں۔ اب کی بار مناہل کی آواز مدھم ہوئی۔ بیٹا کون سا باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کا گھر برباد ہو؟ دانیال صاحب دکھ سے بولے۔ پلیز ابو، میرے لیے۔ مناہل لہجے میں التجا لیے بولی۔ ٹھیک ہے مناہل، جیسا تم چاہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا اپنے بیٹے پر زور تھا، تم پر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو آپ میری… اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دانیال صاحب نے اس کی بات کاٹی۔ خوش رہو، بس یہی چاہتا ہوں میں، اور خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ مناہل بس بے بسی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے اچھے سے صفائی کرو، دیکھو کتنے دن سے تم نے ٹھیک سے صفائی تک نہیں کی۔ فرحت بیگم اپنی ملازمہ سے گھر کے کام کروانے میں مصروف تھی۔ ارے بس کر دو، اور کتنی صفائی کرواؤ گی تم؟ جہانگیر صاحب فرحت کے قریب آ کر بولے۔ ان کو دیکھ کر فرحت مسکرا دی۔ میری بیٹی اور میرا داماد شادی کے بعد پہلی بار گھر آ رہے ہیں، تو ان کے آنے کی خوشی میں گھر کو اچھے سے صاف نہ کرواؤں کیا؟ ہاں ہاں ضرور کرواؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ ارحم کو فون کیا؟ ارحم کے گھر سے واپس آنے کے بعد فرحت اور جہانگیر صاحب نے مناہل اور ارحم کی دعوت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اب سب کچھ بھول کر مناہل اپنے گھر آئے۔ نہیں، ابھی تو نہیں کیا۔ اچھا کرتی ہوں تھوڑی دیر میں سوچ رہا تھا کہ آج کی بجائے کل کی دعوت رکھ لو۔ جاؤ تم جا کر مناہل کے روم کی صفائی کرو۔ جہانگیر صاحب کو جواب دینے سے پہلے فرحت بیگم نے ملازمہ کو حکم صادر کیا، جو اس بات میں سر ہلا کر اب مناہل کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ کیوں آج کیوں نہیں؟ ملازمہ کے جاتے ہی وہ جہانگیر صاحب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آج شام کو میری میٹنگ ہے، اس لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، وہ کہتے ہوئے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ویسے ایک بات بتائیں، پوچھو، آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے نا مناہل کو؟ ہاں، جب اس کے شوہر نے اسے معاف کر دیا تو پھر میں تو اس کا باپ ہوں، میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ ارحم اور وہ دونوں ایک ساتھ خوش رہیں۔ آمین، فرحت بیگم نے دل سے کہا۔ میں اندر آ جاؤں؟ ہمدان نے اس کے روم کے دروازے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ ارحم جو اپنی فائل میں منہ دیے ہوئے تھا، ہمدان کی آواز پر چونکا تھا، پھر سنبھل کر بولا، آ جاؤ یار، پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اس کی بات پر ہمدان مسکرا دیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اصل میں یار، تمہارے پولیس اسٹیشن کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے بھی ملتا جاؤں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور سناؤ، سب ٹھیک ہے؟ بھابھی ٹھیک ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، جب سے انم تمہارے گھر سے آئی ہے ہر وقت مناہل بھابھی کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ ارحم میں تو اب کہتا ہوں جلدی سے فیملی پلاننگ کر لو، ہمدان شرارت سے بولا۔ ہمدان کی بات پر ارحم طنزیہ مسکرایا۔ کون سی فیملی پلاننگ یار؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ہمدان جب سے آیا تھا اس نے نوٹ کیا تھا کہ ارحم کسی بات کو لے کر پریشان سا ہے۔ مناہل چاہتی ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ بولتے ہوئے ارحم کی آواز میں ایک عجیب سا قرب تھا اور ہمدان کو ارحم کی بات پر شوق لگا۔ لیکن وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ میں نہیں جانتا، ارحم لاپرواہی سے بولا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ہمدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی بات پر ارحم زخمی سا ہنسا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے ہمدان؟ جب رجا سے کہا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے تو وہ کہنے لگی کہ ابھی صرف منگنی کریں گے، شادی میں اپنی PhD کرنے کے بعد کروں گی۔ اس کی خوشی کے لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ ابو نے زبردستی رجا کی بجائے مناہل سے شادی کروا دی، تب بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب جب مناہل کو بیوی کے روپ میں قبول کر چکا ہوں تو وہ چاہتی ہے میں اسے چھوڑ دوں۔ ارحم
तो तुम्हें मोहब्बत हो गई है ना मनाहिल भाभी से? हमदान ने बिना सोचे समझे उससे सवाल किया। उसके सवाल पर अरहम चौंका, फिर संभल कर बोला, पता नहीं हमदान, लेकिन अब जब पुलिस स्टेशन से घर जाता हूँ तो चाहता हूँ कि पहली नज़र उस पर पड़े। मेरा हर काम वो खुद करे, बस वो मेरे आस पास रहे। मैं जब रिजा का हाथ पकड़ता था तो डरता भी था कि कहीं उसे बुरा ना लगे, लेकिन मनाहिल का हाथ पकड़ते हुए मुझे लगता है वो मेरी है। उसका हाथ पकड़ते हुए मैं कभी नहीं डरा, बल्कि एक अजीब सी खुशी होती है उसके करीब रहकर। पता है रिजा और मनाहिल में क्या फ़र्क है अरहम? क्या? मनाहिल भाभी तुम्हारी महरम है, जबकि रिजा ना महरम। तुम्हारा हक है मनाहिल भाभी पर, वो तुम्हारे निकाह में है। तुम मनाहिल भाभी से बात करो, तुम्हारी आंखों से लग रहा है कि तुम भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। मैं अब किसी से भी कोई बात नहीं करूँगा, मैं रिजा और मनाहिल दोनों की ख्वाहिश पूरी करूँगा। कैसी ख्वाहिश? हमदान ने हैरानगी से पूछा। रिजा मुझसे निकाह करना चाहती है, और ये भी चाहती है कि मैं निकाह के दिन मनाहिल को तलाक दे दूं, और मनाहिल चाहती है कि मैं उसे छोड़ दूं। तो अब ऐसा ही होगा, रिजा के निकाह के दिन ही मनाहिल को मैं तलाक दे दूंगा। अरहम ने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। लेकिन अरहम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मनाहिल भाभी से मोहब्बत करते हो। हमदान तो जैसे भड़क उठा था। नहीं करता मैं उससे मोहब्बत। क्यों एक बात के पीछे पड़ गए हो हमदान? अब की बार अरहम की आवाज़ में गुस्सा वाज़ेह था। अरहम की बात पर हमदान बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? बैठो। सॉरी, पता नहीं एकदम गुस्सा आ गया। अरहम जैसे अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हुआ था। कोई बात नहीं अरहम, ये अल्फाज तुमने मुझे नहीं कहे, बल्कि अपने दिल को कहे हैं, जो तुम्हें चीख चीख कर कह रहा है और तुम उसे सुनना नहीं चाहते। कहते हुए वो बड़े बड़े कदम उठाता बाहर निकल गया, और उसके जाते ही अरहम ने किसी हारे हुए इंसान की तरह कुर्सी की पोस्ट से टेक लगा ली थी। हाय मामा, कैसी हैं आप? रिजा सुमेरा बेगम से पुरजोश अंदाज में मिलते हुए उनका हाल पूछने लगी, जो रिजा को देखकर शुश्तर रह गई। रिजा बिना बताए इटली से पाकिस्तान वापस आ गई, और सुमेरा बेगम को उसे इस तरह से देखकर शौक लगा। तुम इतनी जल्दी आ गई? सुमेरा बेगम को तो यकीन नहीं आ रहा था। रिजा 3 माह के लिए इटली गई थी, लेकिन वो 3 माह पूरे होने से पहले ही पाकिस्तान वापस आ गई। जी मामा, मेरा दिल नहीं लगा इसलिए। और आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं, जैसे आपको मेरा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा? रिजा को सुमेरा बेगम का अंदाज अजीब सा लगा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में तुम इस तरह बिना बताए वापस आ गई हो, तो इसलिए थोड़ी परेशान हो गई। सुमेरा बेगम ये चाहती थी कि वो इटली जाकर अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देख ले। उन्होंने रिजा की बड़ी बहन सारा को भी ये कहा था कि वो उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखे वहाँ, ताकि दोनों बहनें एक ही मुल्क में रहें। अच्छा चलें बैठें, मैं तो सफ़र से थक गई हूँ, वो कहते हुए सोफे पर बैठ गए, तो वो भी सर झटक कर उसके करीब आ बैठी। तुम्हें वहाँ कोई लड़का पसंद नहीं आया? सुमेरा बेगम ने बेसाख्ता पूछा। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? क्या मैं वहाँ लड़के पसंद करने गई थी? रिजा तो जैसे उनके सवाल पर भड़की। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सुमेरा बेगम उसको गुस्से में देखकर नॉर्मल अंदाज में बोली। मामा, आपका मतलब जो भी था, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, मैं सिर्फ अरहम से मोहब्बत करती हूँ, और आप ये याद रखें कि मैं शादी भी सिर्फ उसी से करूँगी। मैं नहीं समझती? सब समझती हूँ मैं। माँ हूँ तुम्हारी रिजा, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अब की बार सुमेरा बेगम की आवाज़ में सख्ती थी। मामा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है अरहम आपकी रिजा से। और ये मैं नहीं कह रही, उसने खुद मुझे कहा है। रिजा बोलते हुए उठ खड़ी हुई। ये बात वो उस लड़की से शादी करने से पहले करता होगा तुम्हें, अब नहीं। वो अब भी करता है, बहुत मोहब्बत करता है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता ना, तो नेक्स्ट वीक मैं आपको इस बात का सबूत दूंगी। रिजा एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कह रही थी। अच्छा, क्या होगा अगले हफ्ते? सुमेरा बेगम अब उसके सामने खड़े होकर तल्खी से पूछने लगी। अगले हफ्ते अरहम मुझसे निकाह करेगा, और उसी दिन वो मनाहिल को तलाक देगा। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद रिजा तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, और रिजा को जाते देखकर सुमेरा बेगम दांत पीस कर रह गईं बस। आहद, नूर ने उसे आवाज़ दी, जो उस वक्त ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। जी आहद की जान, उसने मोहब्बत से जवाब दिया। मुझे आज घर जाना है, नूर मासूमियत से बोली। आहद ने कोट के बटन बंद करते हुए उसके चेहरे का बगौर जायज़ा लिया। उस वक्त वो किसी मासूम बच्चे की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई थी। क्यों जाना है? आहद उसके करीब आकर पूछने लगा। अब्बू की याद आ रही है, और भाई से भी कितने दिन हुए मुलाकात नहीं हुई। प्लीज़ मुझे घर छोड़ाएं। अब की बार नूर के लहजे में इल्तजा थी। ठीक है, तैयार हो जाओ, लेकिन मैं एक शर्त पर लेकर जाऊंगा। आहद बज़ाहिर संजीदगी से बोला। कैसी शर्त?
नूर ने हैरानगी से पूछा। रात होने से पहले तुम्हें लेने आ जाऊंगा मैं। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मैं ले चलता हूँ। आहद अपने अल्फाज पर जोर देकर बोला। लेकिन आहद, सिर्फ चंद घंटे। नूर दुख से बोली। मेरी जान, ये जो आपका शोहर है ना, ये आपके बगैर नहीं रह सकता। ये चंद घंटे का भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस वक्त ऑफिस हूँगा। आहद उसको अपने हिसार में लेते हुए बोला। अब ऐसी भी बात नहीं, आप मेरे बगैर पहले भी तो 1 हफ्ते से ज़्यादा रहे थे ना। नूर उसका हिसार तोड़ते हुए बोली। तुम्हें क्या पता कि मैंने वो दिन कैसे गुजारे। पता है कितनी याद आती थी तुम्हारी, ठीक से सो भी नहीं पाता था। बोलते हुए आहद ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब छोड़े मेरा हाथ, देर हो रही है, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। कहते हुए उसने अपना बाजू छुड़वाया। मुझे तो लगा था तुम गुस्सा करोगी और कहोगी, आहद मियाँ, अगर चंद घंटों के लिए ही जाना है तो मैं नहीं जाती। आहद उसको देखते हुए शरारत से बोला, जो अब वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने में मसरूफ थी। अरे वाह, मैं ऐसा क्यों कहूँगी, मेरे लिए ये चंद घंटे भी बहुत हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए। नूर उसके पास से गुजरती वॉशरूम की तरफ बढ़ी और आहद उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। अच्छा, जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ जाना, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। आहद बुलंद आवाज़ में कहता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। अरहम 1 दिन के बाद घर वापस आया था। मीटिंग के लिए उसे लाहौर जाना पड़ा, इसलिए वो नाश्ते के वक्त घर वापस पहुंचा। मनाहिल किचन से उसे अपने कमरे में जाता देख रही थी। कुछ देर पहले ही दानियाल साहब नाश्ते से फारिग होकर अपने रूम में गए थे। आज उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने ऑफिस ना जाने का फैसला किया था। रानी, तुम अरहम के लिए नाश्ता बनाओ, मैं अभी आती हूँ। जी बीबी जी, रानी ने अदब से जवाब दिया। कुछ देर के बाद मनाहिल कमरे में आई जहाँ अरहम अपनी घड़ी उतारकर टेबल पे रख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मनाहिल ने अदब से सलाम किया। वो जानती थी कि अरहम उससे बहुत खफा है, लेकिन मनाहिल चाहती थी कि जब तक वो उसके साथ है अरहम उससे बात करे, बेशक उस पर गुस्सा करे, लेकिन बात तो करता रहे। अरहम ने उसके सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से आगे बढ़ गया। अरहम, नाश्ता ले आऊं? मनाहिल ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, अरहम ने मुख्तसर जवाब दिया। मुझसे नाराज़ हैं आप? लेकिन नाश्ते से क्या नाराज़गी? मनाहिल बज़ाहिर हिम्मत करते बोली, लेकिन अरहम के गुस्से का ख्याल आते ही उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। उसकी बात पर अरहम के चलते कदम रुके और उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? अरहम उसकी आंखों में देखते हुए तल्खी से बोला। एकदम से नज़र उसके हाथ पर पड़ी जिस पर 1 दिन पहले मनाहिल की चूड़ी टूट कर लगी थी। उसके हाथ पर जख्म अभी भी ताज़ा था। आपका जख्म? मनाहिल ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अरहम ने फ़ौरन हाथ पीछे किया। मेरा हाथ मत पकड़ना तुम। अरहम दांत पीस कर बोला। सॉरी, उस दिन मेरी वजह से आपको ये ज़ख्म। मनाहिल ने बात अधूरी छोड़ी। उसकी बात पर अरहम तंजिया मुस्कुराया। मनाहिल, मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग सिर्फ मुझे ज़ख्म देने के लिए आए हैं और उनमें से तुम भी एक हो। कहते हुए वो सोफे पर आकर बैठ गया। अरहम की बात से तो जैसे मनाहिल का दिल ही कट गया था। अरहम, आप? इससे पहले कि वो कुछ कहती अरहम ने उसकी बात काटी। मैं वो इंसान हूँ मनाहिल, जो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है वो उससे दूर चली जाती है। यह शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। अगर मैं सब भुला कर आगे बढ़ना भी चाहूँ ना, तो जिनसे मुझे मोहब्बत है वो आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि उन्होंने मुझे बस अजियत देना सीखा है। अरहम आंखें मूंदता हुआ बुड़बुड़ा रहा था, लेकिन मनाहिल उसकी बुड़बुड़ाहट सब सुन रही थी। उसकी बात पर मनाहिल के लब भींचे और वो उसे देखती रही, लेकिन बोल कुछ भी नहीं पाई। 1 घंटे बाद अरहम कमरे से चला गया। वो अब दोबारा कहाँ गया था ये मनाहिल को भी नहीं पता था। अरहम के जाने के बाद मनाहिल अपनी चीज़ें समेट रही थी। कुछ देर बाद नूर रूम में दाखिल हुई। नूर को एकदम देखकर मनाहिल हैरान हुई थी, इसलिए नहीं कि वो उसके रूम में आई, बल्कि उसके चेहरे को देखकर जो उस वक्त गुस्से से सुर्ख था। नूर, तुम कैसी हो? मनाहिल बज़ाहिर मुस्कुराते हुए उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। नूर मनाहिल को अपने करीब आता देखकर 2 कदम पीछे हुई और स्पाट लहजे में बोली। नूर के अंदाज पर मनाहिल को धचका लगा था। ये तुम कैसे बात कर रही हो नूर, जैसे मुझे करनी चाहिए? मनाहिल, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? बोलो, क्यों कर रही हो ऐसा? नूर अब उसके करीब आकर चीखने वाले अंदाज में बोली थी। मैं क्या कर रही हूँ नूर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाह रही हो। नूर ने इस बार खुद को नॉर्मल किया, फिर मनाहिल की तरफ मुतवज्जो हुई। तुमने भाई को क्यों कहा कि वो तुम्हें तलाक दे दे? नूर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। नूर की बात पर मनाहिल को करंट लगा, जैसे उसे यकीन नहीं था कि नूर को इस बात का पता चलेगा। मनाहिल ने उससे नज़रें चुरा ली। उसके इस तरह नज़रें चुराने पर नूर को यकीन हो गया कि जो अब्बू कह रहे थे वो ठीक है।
नूर ने आते ही दानियाल साहब से मुलाकात की थी। उनको परेशान देखकर नूर ने उनसे वजह पूछी। पहले तो वो कोई भी वजह बताने से इनकारी रहे, लेकिन जब नूर ने उन्हें अपनी कसम दी तो दानियाल साहब को हकीकत बताना ही पड़ी। इधर देखो मेरी तरफ मनाहिल, सच सच बताओ, क्या भाई तुम्हारे साथ अभी तक ठीक नहीं हुए? नूर ने उसका हाथ पकड़ा। अब की बार नूर का अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। नहीं नूर, वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब तो बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे साथ। मनाहिल उसे यकीन दहानी कराने लगी। तो फिर तुमने क्यों कहा कि वो तुम्हें तलाक दे दें? नूर को तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मनाहिल कभी ऐसा भी कर सकती है। मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती, मनाहिल ने साफ गोई से काम लिया। वजह वो तो तुम्हें बताना ही पड़ेगी मनाहिल, नूर ने सर्द मोहरी से कहा। नूर देखो, इससे पहले कि मनाहिल कुछ कहती, नूर ने उसकी बात काटी। मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे बस सुनना है मनाहिल, नूर उसकी आंखों में देखते हुए बोली। रिजा चाहती है कि मैं अरहम से तलाक ले लूं। मनाहिल ने बोलते हुए सर झुका लिया। रिजा के नाम पर नूर शुश्तर रह गई। उसे समझ नहीं आया कि रिजा उससे ऐसा क्यों कहेगी। लेकिन रिजा तुम्हें ऐसी बातें क्यों कहेगी? अगर वो ऐसा चाहती भी है तो अरहम भाई से बात करे। वो कहती है कि अरहम अब्बू से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कहती है कि अरहम अब्बू से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं अब्बू से बात करूं। मनाहिल की आंखें भर आईं। तुम पागल तो नहीं हो? उनके लिए अपना घर तबाह कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें मनाहिल? नूर का दिल किया कि उसकी अकल पर मातम करे। वो इस कदर अहमक भी हो सकती है कि इतनी आसानी से अपना शोहर किसी को दे रही है। नूर, वो अरहम से बहुत मोहब्बत करती है, तुम जानती हो। रिजा ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे। उसकी आंखों में अरहम के लिए मोहब्बत देखी है मैंने, उसकी बेबसी मैंने महसूस की थी। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी आंखों में जो अरहम भाई के लिए मोहब्बत है, उसका क्या? बोलो। और अब तो अरहम भाई भी, मनाहिल ने उसकी बात काटी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उन सब में रिजा का क्या कसूर था? उसे किस बात की सज़ा मिल रही है? तो ठीक है, भाई रिजा से शादी कर लें, पर तुम्हें तलाक ना दें। नूर ने अपना फैसला सुनाया। नहीं नूर, मैं अब अरहम से दूर रहना चाहती हूँ, और तुम्हें कसम है हमारी दोस्ती की, तुम कोई भी बात नहीं करोगी अरहम से। मनाहिल ने उससे इल्तजा की। लेकिन मनाहिल, नूर ने बेबसी से कहा। मनाहिल बेदर्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। छोड़ो ये सब, हम अच्छी दोस्त हैं, थीं और हमेशा रहेंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनवाती हूँ। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो जाती, नूर ने उसका हाथ थाम कर उसे रोका और गले लगा लिया। बहुत बहादुर हो गई हो मनाहिल। उसके गले लगाने पर मनाहिल हिचकियों से रो दी। उस वक्त उसे किसी कंधे की ज़रूरत थी, जो नूर ने उसे दे दिया। कुछ देर बाद जब मनाहिल का दिल हल्का हुआ तो वो नूर से दूर हुई। सॉरी, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। रोते हुए मनाहिल की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। तुम ठीक तो हो ना? नूर ने उससे पूछा। मनाहिल ने सर इस बात में हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। कैसे हो अरहम? रिजा ने उसके करीब आकर पूछा। रिजा ने अरहम को मिलने के लिए बुलाया था। वो अरहम से अगले हफ्ते निकाह के बारे में बात करना चाहती थी। मनाहिल से वो पहले ही पूछ चुकी थी कि उसने दानियाल साहब से बात की है या नहीं, लेकिन मनाहिल ने बता दिया था कि दानियाल साहब ने अरहम को कह दिया है कि जैसा मनाहिल चाहती है वैसा ही करो। मैं ठीक हूँ, अरहम बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोला। अरहम का फ़िलहाल रिजा से मिलने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन उसके इसरार पर अरहम को आना पड़ा। गुड। वैसे तुम्हें मुझे देखकर हैरानगी नहीं हुई कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई? रिजा को लगा कि वो उसे देखकर हैरान होगा, उससे पूछेगा कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गई, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। अरहम ने उससे कुछ नहीं पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई, अरहम संजीदगी से बोला। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। क्यों भाई, क्या मुझे मिस कर रहे थे तुम? वैसे मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया, और मैं तुम्हारी वजह से ही जल्दी आई हूँ। उसकी बात पर अरहम बमुश्किल मुस्कुराया, मगर रिजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरहम, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, रिजा संजीदगी से बोली। करो, मैं सुन रहा हूँ। अरहम, मैं चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट वीक शादी कर लें। उसकी बात पर अरहम चौंका, फिर संभल कर बोला, ठीक है। अरहम के इस तरह फ़ौरन मान जाने पर रिजा खिल उठी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि अरहम फ़ौरन मान जाएगा। लेकिन मेरी शर्त, रिजा कुछ सोचते हुए बोली। याद है मुझे, 1-2 दिन में तलाक के पेपर्स तैयार होंगे।
لیکن طلاق میں اسی دن دوں گا جس وقت میں تم سے نکاح کروں گا۔ ارحم کھردرے لہجے میں بولا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسی پل رجا کو انکار کر دے، کہہ دے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کس کے لیے؟ وہ جو اسے خود کہہ چکی ہے کہ اسے اس سے طلاق چاہیے، لیکن کس کے لیے؟ وہ جو خود اسے کہہ چکی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ارحم، میں جانتی تھی تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم میرے لیے سب کر جاؤ گے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے ہفتے ہم صرف اور صرف سادگی سے نکاح کر لیں اور 3-4 ماہ بعد دھوم دھام سے شادی۔ نہیں، جس دن نکاح ہوگا رخصتی بھی اسی دن ہوگی، بالکل سادگی سے۔ ارحم اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ رجا کو اس کی بات سے دکھ ہوا۔ اس نے تو کتنی پلاننگ کی تھی اپنی شادی کی، لیکن ارحم… پھر وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ رجا کی بات پر ارحم… ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی۔ رجا کی بات پر ارحم قہقہہ لگا کر ہنسا۔ میری خوشی؟ بولتے ہوئے وہ پھر سے ہنس دیا۔ ارحم کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ رجا کو وہ اس وقت بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں ہنس رہا ہے۔ کیا ہوا ارحم؟ ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ اس کے پوچھنے پر ارحم اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی ارحم ایک پل کے لیے بھی نہیں رکا اور رجا بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔